ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت کرتا آیت کریمہ پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی اللہ سیدنا و سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جس محفل میں تشریف فرما ہے، الحمدللہ یہ دنیا کی سب سے بہتر اور عمدہ محفل ہے۔ محترم حضرات، ایک سوال ہے میرا آپ لوگوں سے، آپ اس کا جواب دیں گے۔ آپ پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گھر سے کیا خرچ کر کے نکلے ہیں؟ ہمارے پاس کئی فون، ایک دو نہیں اور نام لینے کی ضرورت نہیں۔ عالم صاحب، اس مرتبہ سجاوٹ بہت کم ہوئی ہے۔ مرزا ریاض بیگ صاحب، اس مرتبہ سجاوٹ بہت کم ہوئی ہے۔ حاجی عرفان صاحب، اس مرتبہ سجاوٹ بہت کم ہوئی ہے۔ عبد القادر بھائی عیسانی، اس مرتبہ سجاوٹ بہت کم ہوئی ہے۔ تو میری طرف سے سب کے لیے ایک ہی جواب ہے، آپ یہ بتائیے کہ یہ چار نام جو لیے جا رہے ہیں کیا نبی ان کے ہی ہیں، آپ کے نبی نہیں ہیں؟ گھر میں بیٹھ کر بیٹے کے جنم دن پر آپ 10 کلو کا کیک کاٹ سکتے ہیں، نبی کے نام پر گھر کے آپ ٹھنڈا بھی نہیں لگا سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارنی شہر کے اندر بیٹے کے لیے کپڑا نہیں ملا اچھے سے اچھا تو یوتمال شہر پہنچ جائیں گے، یوتمال نہیں ملا تو امراوتی سے ڈریس آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جنم دن ہے میرے بیٹے کا۔ ابھی اس بیٹے کا جنم دن منانے کے لیے تو امراوتی شہر تک جا رہا ہے، نہ معلوم کل تجھے ایک گلاس پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو میدان محشر میں تیری شفاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے نام پر تو ایک جھنڈا لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الحمدللہ، جب بھی 12 ربیع النور آئے یاد رکھنا کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو 3 جھنڈے لے کر بھیجا تھا۔ اے جبرائیل جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہے، ایک خانہ کعبہ پر لگا دو، ایک بیت المقدس پر لگا دو، اور ایک آمنہ کے گھر پر جھنڈا لگا دو، اور دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ جب جب ربیع النور آئے گا آمد محبوب پر یہ جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آئیں گے، لہراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، فلاں نے سوال کرنا بڑا آسان ہے لیکن جواب دینا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا چلوں، حق کہنے سے
اور سچ بات کہنے سے زندگی میں نہ کبھی میں کسی سے ڈرا ہوں اور نہ کبھی ڈرنے والا ہوں. میرا باپ بھی ہوگا تو اسی منزل میں ہوگا, میرا بھائی بھی ہوگا تو اسی منزل میں ہوگا, نبی کی امت بھی ہوگی تو اسی منزل میں ہوگی. سنو, حقیقت تو یہ ہے کہ جب گھر سے نکلا کرو تو کچھ نہ کچھ نبی کے نام پر خرچ کر کے نکلا کرو, اس لیے کہ جو دنیا کے لیے تم لٹا رہے ہو یہ دنیا تمہیں کچھ دینے والی نہیں ہے, اور جس مصطفیٰ کے لیے لٹانے کے لیے تیار نہیں ہو وہ نبی تمہیں سب کچھ عطا کرنے کے لیے تیار ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. یہ اولاد تیری گود میں ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے, یہ تیرے گھر میں خوشیاں لہرا رہی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے, یہ زمانہ چمک رہا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے, یہ ساری ہریالی مصطفیٰ کے صدقہ ہے. آپ کو معلوم ہے یہ ہرے بھرے درخت جو نظر آ رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے جملہ یاد آ گیا تو دے رہا ہوں. آج دنیا یہ کہتی ہے نبی کے پیدائش کے دن یہ ہریالی کیوں ہے, یہ ہری پتنگیں کیوں ہیں, یہ ہرے جھنڈے کیوں ہیں؟ میں نے کہا سن, ہم نے کاغذ کا جھنڈا لگا دیا تو سوال کر رہا ہے, ہم نے ایک ترنگ لگا دی تو سوال کر رہا ہے, ہم نے ہریالی پھیلائی تو سوال کر رہا. سوال تو کس اس بارے الہ سے نبی کے بھیجنے سے پہلے. اٹھا کے دیکھو حدیث پاک, اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں میری پیدائش پیر کے دن ہوئی ہے, اللہ نے درختوں کو بھی پیر کے دن پیدا کیا ہے, میں نے گھر میں ایک ہرا جھنڈا لگایا ہے. رب نے تو پوری دنیا کے اندر ہریالی بھیج کر استقبال کیا ہے نبی کا. اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک چیز عرض کر دوں. میں نے ان سے اعلیٰ حضرت کے موقع پر مومن پورا میں تقریر کا پروگرام تھا, چیز میں کہہ رہا ہوں, لیکن آج چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایک بات یاد رکھنا, تحدیث نعمت کی طور پر فخر نہیں ہے. 16 سال کی عمر میں نے مائک سنبھالا تھا, اور جس وقت پہلی مرتبہ میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا تھا, آپ جیسے عام لوگ نہیں تھے بلکہ میرے اساتذہ تھے. ایک سے بڑا جیل تعلیم جس میں علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب محدث کبیر, مفتی شریف الحق صاحب نائب مفتی اعظم, ایک سے بڑے جیل. 16 سال کی عمر میں جب میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا, الحمدللہ پہلی تقریر میں بھی میں نے اساتذہ سے نمبر 1 کا انعام حاصل کیا تھا. آج میری تقریر کے لیے میں نے سنا ہے, میرے کانوں پر آئے, میں دنیا میں نہیں ہوں. مومن پورا میں نے تقریر کی تو میں نے یہ سنا ایک ایسا مولوی جس کو وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے. چیلنج کے ساتھ آج کہتا ہوں, اے گستاخو سنو, اگر تم نے میرے سامنے مکمل وضو کا طریقہ بھی کر کے بتا دیا تو انشاءاللہ اس لائن سے میں اپنا نام کاٹ لوں گا. تم تقریر پر کیا سوال کریں گے؟ انہوں نے میرے ایک جملے پر میں نے سنا, لوگوں نے مجھے بتایا, مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے میرے ایک جملے پر لال نشان مار دیا. میں نے کہا یہ لال نشان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے لال نشان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی تقریر یہ پائی کاٹ کر دی گئی, ہمیں پسند نہیں ہے. میں نے کہا تو میرے اوپر لائن کیا مارے گا لال نشان کی؟ مدینے سے پہلے تیری پوری جماعت کے اوپر لال نشان کر چکا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مولانا محمد حسن رضا صاحب مصباحی, نعرہ تکبیر. الحمدللہ میں نے جتنی کتابیں پڑھ لی ہیں تو اتنی کتابوں کا نام بھی لے دے تو میں تجھے مولانا مان لوں گا, عالم مان لوں گا. میں نے ایسے ایسے شاگرد پیدا کر دیے ہیں الحمدللہ کہ مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. شاگردوں کو تو چھوڑ دیجئے, میرے شاگردوں کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. چیلنج ہے میرا. اب سنیے, 16 سال کی عمر سے لے کر آج تک میں نے جتنی تقریریں کی ہیں الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. کبھی میں نے اپنے ایک جملے سے بھی مجھے رجوع نہیں کرنا پڑا, کہیں توبہ نہیں کرنا پڑی ہے, اس لیے کہ میں جب بھی مائک پر کھڑا ہوتا ہوں میں اپنے علم کے بھروسے نہیں کھڑا ہوتا ہوں, کتابوں کے بھروسے نہیں کھڑا ہوتا ہوں, بلکہ اعلیٰ حضرت کے فیضان کو لے کر میں کھڑا رہتا ہوں. اور یہ امام احمد اللہ کا فیضان ہے کہ میری زبان سے کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں نکلا. مولویوں لمبا جبہ پہن لینے سے مولوی نہیں ہو جاؤ گے, لمبی ٹوپی لگانے سے مولوی نہیں ہو جاؤ گے. کتابیں پڑھو اور کتابیں وہی پڑھے گا جو مدینے کا عشق و محبت سینے کے اندر لے کے چلے گا. تم کیا جانو کتاب
किताबों में क्या लिखा है, तुम क्या जानो किताबों में क्या है। इसलिए कि तुमने तो एक किताब पढ़ी है जिसका नाम ही देवबंद है, तुम्हारा तो सारा कारोबार बंद हो चुका है, कुछ भी खुला हुआ नजर नहीं आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें कल भी चैलेंज था, आज भी चैलेंज है। और एक बात आपको बता दूं, अगर मर भी जाऊंगा और मरने के बाद कफन भी चेहरे पर डाल दिया गया, उसके बाद भी तुमने चैलेंज किया, तो ताजुल शरिया का मुरीद हूं, पर्दा हटाकर उस वक्त भी तुम्हें जवाब देने के लिए तैयार रहूंगा। इसलिए कि आला हजरत ने फरमाया है, लमियाते नज़ीरों का फी नजरी मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, लमियाते नज़ीरों का फी नजरी मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगरात का ताज तेरे सर तू है, तुझको चाहे दूसरा जाना, अल पहलवाला वल मौजो तका मन बेकसे तूफा होश रुका। आला हजरत की नात का एक शेर पूरी देवबंदियत के कारखाने को चैलेंज है कि पहले एक मिसरे का तर्जुमा तो करके बता दो, उसके बाद मुकाबला करने के लिए आना। हकीकत तो ये है कि जिस किताब का तुम उन्वान नहीं जानते हो, उस किताब के अंदर हम गोता जन होकर तुम्हारे सामने खड़े हैं। आज मैं आपके सामने ज्यादा बहस में न जाते हुए, अगर कोई ऐसा मौजूद हो अपनी कॉपी खोल ले, कलम को शुरू कर दे, इसलिए कि वो कलम चलाना भी नहीं जानता है, हाँ मोबाइल पर उंगलियां हिलाना जानता है। तेरा काम है मोबाइल पर उंगलियां हिलाना, मेरा काम है अपनी मोहब्बत को नबी के कदमों पर लुटाना, तेरा काम है इशारों में बात करना। सुन, अरब की धरती पर चल, वहाँ के एक गैर मुकल्लिद आलिम ने, हम नहीं मानते तुम ही कहते हो, अरब में तो हमारे ही सब है, तुम कहाँ नमाज पढ़ते हो, तुम कहाँ जाते हो, अरब में तुम्हारे सब है। अभी अरबियन एक आलिम का बयान आया है, सुनिए उसका बयान मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसने एक बयान दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर कई जमातें हैं, लेकिन एक जमात वो है जो बरेलवी कहलाती है, दूसरी जमात वो है जो देवबंदी कहलाती है, मगर मेरी निगाह में देवबंदियों से बेहतर बरेलवी है। आगे उसका जवाब देखो क्या लिखा उसने। ये कौन बोल रहा है? अरब का गैर मुकल्लिद आलिम बोल रहा है, वो अरबी जिनके जूते उठाने के लिए तुम तैयार हो, हम तो उनके ताज को भी अपने जूते में लिए हुए हैं, तुम उनकी जूतियां मार रहे हो, तुम्हें हुकूमत का डर होगा, तुम्हें हुकूमत का डर होगा, इसलिए कि तुम वहाँ की ज़कात खाते हो, अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी की ज़कात नहीं खाते हैं, तुम चंद सिक्कों पर पड़ने वाले हो, तुम उनके गीत गाते रहो। वही आलिम कहता है हिंदुस्तान के अंदर दो जमातें हैं, एक बरेलवी है, एक देवबंदी है, लेकिन मेरी निगाह में बरेलवी अच्छे हैं। लोगों ने पूछा क्यों? कहा देवबंदी वहाँ के ऐसे हैं जैसे घर में चूहा होता है, रात के अंधेरे में कपड़े को काटता रहता है, सवेरे देखो तो कपड़ा कट जाया करता है। वहाँ की देवबंदी जमात ऐसी ही है कि रात के अंधेरे में बैठकर कपड़ा काटती है, लेकिन एक जमात बरेलवी है, वो ऐसी जमात है कि रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में जो करते हैं वो किया करते हैं। इसलिए कि रात के अंधेरे में चोर आया करता है, दिन के उजाले में कभी चोर नहीं आता है। वही आएगा जो ईमानदार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भी काम है चैलेंज के साथ है। अब आइए 12 रबीउल नूर पर चले, दूसरों का जिक्र करने की जरूरत नहीं, हमने कभी किसी को नहीं छेड़ा है, लेकिन याद रखना अगर छेड़ोगे तो कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कि तुमने एक किताब पढ़ी है तो तुम्हें इतना घमंड आ गया है कि उलमा पर उंगलियां उठाते हो। हमने हजारों किताबें पढ़ी नहीं है और लाखों अपने शागिर्दों को पढ़ा दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्र हमारी इसी में जा रही है। लेकिन आइए मैं आपके सामने आज करता हुआ चलूं। बड़ा बहुत जमाना बुरा गुजर गया, घर के घर उजड़ गए, कितने लोग मुसीबत में आ गए। कोरोना काल के अंदर उनसे पूछिए जिनके घरों से जवान मैयतें चली गई, किसी के घर से बेटा चला गया, किसी के घर से बहू चली गई, किसी के घर के बीबी चली गई, किसी की माँ चली गई, कैसा वक्त गुजरा है। लेकिन आइए आप सोच रहे होंगे इस रबीउल अव्वल के दिन आज हमें ये ढूंढना है इस कोरोना का इलाज क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो तारीख है यहाँ पर हर मर्ज का इलाज है, हर मर्ज की दवा है। आइए मैं आपके सामने आज करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सवाल और करता हूँ आपसे। कोरोना काल के अंदर हमने देखा कोरोना लोगों को आपने बहुत परेशान किया,
खास तरीके से इमामों को आपने बहुत परेशान किया। जब मस्जिदों में ताले थे, ताला खोलिए हमें नमाज पढ़ना है, ताला खोलिए हमें नमाज पढ़ना है, हमें जुमे के लिए नहीं आने दे रहे। ये कमेटी ऐसी है, ये सदर ऐसा है, ये सेक्रेटरी ऐसी है। मस्जिद में जब ताला था तो नमाजियों की कोई कमी नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ताले खुल चुके हैं। मैं पुकार रहा हूँ, नमाजियों कहाँ हो? जमात नहीं हो रही है, जुमे में लोग नहीं आ रहे हैं, मुसीबत के वक्त परेशान करते हो, हालात को समझते नहीं हो, दिमाग से काम लिया करो। बदनाम करने से कोई तुम्हारे बदनाम नहीं हो जाएगा। कल जब मस्जिदें बंद थी तो हजारों नमाजी नजर आ रहे थे, आज मस्जिदें खुल गई हैं तो सारे नमाजी गायब हो गए हैं। कहाँ हो? घरों के अंदर बैठे हो, कोरोना में परेशान करने वालों। आज मैं तुम्हें दावत देता हूँ, मस्जिद के दरवाजे खुल गए, आओ। दरगाह का दरवाजा खुल गया है, आओ। परेशान करना छोड़ दो। और हाल तो ये है, मौलवी इतना गरीब हो चुका है, उलमा इतने गरीब हो चुके हैं, जिसकी बीवी भी घर में मारती है वो भी तबसरा करता है तो मौलाना पर बड़े आसान से तबसरा कर लेता है। ये मौलाना वैसा कर रहा है, वो मौलाना वैसा कर रहा है। अरे पहले अपने घर की बीवी को संभाल ले तो हम वक्त तेरे लिए झाड़ू लेकर तैयार रहती है। एक मौलाना ही बेचारा मिला है जिसके ऊपर इतने तबसरे हो रहे हैं। एक कमेटी ही है, एक सेक्रेटरी ही है, एक सदर ही है। ना ना, आओ मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह तबीयत बाग हो जाएगी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, छींक आए छींक तो हाथ रख लिया करो मुंह पर। कितने मुसलमान हैं मुंह पर हाथ रखते हैं? कोई नहीं रखता है। उलमा बताते रहे कि जब छींक आए तो हाथ रख लिया करो, खांसी आए तो अपने मुंह को हटा लिया करो। लेकिन हमने कभी ना सोचा इसके अंदर हिकमत क्या है, नबी ने क्या फरमा दिया है, मेरे नबी ने क्या कह दिया है। अल्लाह अकबर। कल मेरे नबी ने कहा 1400 साल पहले, छींक आए तो मुंह पर हाथ रखो, खांसी आए तो मुंह पर हाथ रखो। उलमा बताते रहे नबी की सुन्नत है, मगर मैंने अमल ना किया। मगर आज जब डॉक्टर ने कह दिया छींक आए तो मुंह बांध लो, कहने लगे क्यों? इसी से तो कोरोना हुआ करता है। खांसी आए तो मुंह बंद कर लो, इसी से कोरोना हुआ करता है। नबी ने बताया, उलमा ने तबलीग की तो हमने ना सुना, सुन्नत पर अमल नहीं किया। और आज जब डॉक्टर ने कह दिया मर जाओगे तो पता चला कि 4 कपड़े मुंह पर बांधे हुए हैं। मैंने कहा क्यों? डॉक्टर की तो मान लिए मगर नबी की मानने के लिए तैयार नहीं हो, नबियों के नबी की मानने के लिए तैयार नहीं हो। मेरे नबी का एक एक कदम हिकमत से भरपूर है। नबी ने इरशाद फरमाया, पहले डॉक्टरों ने ये कहा हाथ से हाथ मत मिलाओ कोरोना हो जाएगा, जिस्म से जिस्म मिलकर कोरोना हो जाएगा। 4 दिन डॉक्टर ये कहते रहे हाथ से हाथ मत मिलाओ, लेकिन 5वें दिन कहने लगे नहीं हाथ से हाथ मिला सकते हो, हाथ मिलाने से कोरोना नहीं होता है। मैंने कहा 1400 साल पहले मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, एक मर्द दूसरे को पकड़ नहीं लेती है, ऐसा परहेज मत करो। मैंने ये देखा इतना बड़ा परहेज, माँ से बेटी दूर हो गई, बाप से बेटा दूर हो गया। बेटा यहाँ खड़ा है मुंह बांधे, बाप कहाँ खड़ा है मुंह बांधे। मैंने कहा क्यों? कहा कोरोना का जमाना चल रहा है, कोरोना से डर है। अरे एक कोरोना ने सबको अलग अलग कर दिया, मगर मेरा नबी इरशाद फरमाता है उम्मतियों सुनो, नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में जाओगे, रोजा रखो नहीं रखोगे तो जहन्नम में जाओगे, ज़कात दो नहीं दोगे तो जहन्नम में जाओगे। जहन्नम में जाने के लिए तैयार है, नबी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर बोलता चला जा रहा है, ये मास्टर मानता चला जा रहा है, मगर मेरे नबी ने जो बोला है उलमा बोलते रहते ये सुनता नहीं है। आओ आज नबी नूर में मैं बताता हूँ हमारी बीमारियों का इलाज कहाँ है, हमारी बीमारियों की शिफा कहाँ है, हम गरीबों का रहबर कहाँ है, हम गरीबों का दाता कहाँ है, हम गरीबों का मौला कहाँ है, हमारा सहारा कहाँ है, हमारा आका कहाँ है। तो चलो मदीनतुल मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी में, अल्लाह अकबर, मदीनतुल मुनव्वरा है। इसी मदीने के अंदर एक रईस यहूदी रहा करता था, अपने वक्त का बहुत बड़ा रईस, इतना मालदार कि मदीना शहर के अंदर कोई उसके बराबर ना था, न यहूदियों में, न ईसाइयों में, न मुसलमानों में।
अल्लाह ने सब कुछ दिया था, मगर वो आंख से अंधा था। अल्लाह ने नेमत को छीन लिया था। माल था मगर देख नहीं सकता था, हवेली थी मगर देख नहीं सकता था, औलाद थी मगर देख नहीं सकता था। रात के सन्नाटे में बैठा हुआ है, हाथ उठाकर कहता है, ऐ बारे इलाह, तूने दुनिया की हर नेमत मुझे दी है मगर मेरी आंख छीन ली है। मुझे हवेली दी, हवेली देख नहीं सकता। मुझे बिल्डिंग दी है, बिल्डिंग में देख नहीं सकता। मुझे इतना मानो दौलत तूने दिया, देख नहीं सकता। रात के सन्नाटे में बैठा है, अकेली एक बेटी थी। बेटी को आवाज देता है, ऐ मेरी बेटी मेरे करीब आजा, ऐ मेरी बेटी मेरे करीब आजा, मुझे जरूरत है। इतने में आवाज दी, बेटी करीब आई। आने के बाद कहने लगी, कहिए क्या बात है अब्बा हुजूर? बेटी बात ये है कि मुझे पेशाब लगी है, मुझे पेशाब के लिए जाना है, मुझे तहारत के लिए जाना है, चल और मुझे तहारत करा के ला ले। बेटी ने बाप का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद गई, जाने के बाद तहारत करा के लाई और लाने के बाद चारपाई पर बिठाने के बाद कहती है, अब्बा हुजूर दुनिया का मालो दौलत मिला है, दुनिया की सरबत मिली है, अल्लाह ने हवेली दी है, अल्लाह ने बिल्डिंग दी है, इतने इतने खूबसूरत गाड़ियाँ, सारी चीज है, मगर अल्लाह ने आपको आंख नहीं दी है। अगर आप कहें दुनिया का कोई हकीम, दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई तबीब आपने नहीं छोड़ा है जिससे आपने इलाज नहीं कराई है, मगर मेरा एक डॉक्टर है, अगर आप इजाजत दें तो आपकी मैं इलाज करा सकती हूँ। इतना कहना था। बेटी की बात सुनकर बाप ने कहा, है मेरी बेटी बता, इतने साल से मैं परेशान हूँ, मैंने दुनिया का कोई तबीब न छोड़ा, दुनिया का कोई हकीम न छोड़ा, दुनिया का कोई डॉक्टर न छोड़ा जिससे इलाज न करवाई हो। आखिर कौन ऐसा तबीब है जो मेरा इलाज करेगा? अल्लाह के नबी की बारगाह की वो चहेती बेटी कहती है, मेरे अब्बा हुजूर आप यहूदी हैं, मगर वो डॉक्टर ऐसा है जो आपके मजहब का नहीं है, आप उसको मानते नहीं है। बाप ने कहा, ये मर्ज की बात है, इलाज किसी से भी कराया जा सकता है, बेटी बता वो डॉक्टर कहाँ है? कहा, अब्बा हुजूर सुनिए, वो डॉक्टर इसी शहर में है, बहुत करीब में रहता है। यहाँ पर मुसलमानों की एक मस्जिद है जिसको मस्जिद नबवी कहा जाता है, इसी मस्जिद के अंदर वो डॉक्टर रहा करता है, वो तबीब रहा करता है। बेटे बाप ने कहा, बेटे ठीक है जा और मेरा इलाज करा के ला। शाम का वक्त है, मगरिब का वक्त है, वो लड़की आई, अल्लाह अकबर, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा खड़े हैं। अबू हुरैरा ने देख लिया आने वाली यहूदी की बेटी है। अबू हुरैरा से कहने लगी, आए अबू हुरैरा ये बताओ क्या अल्लाह के नबी का शान नबुव्वत में मौजूद है? क्या अल्लाह के नबी मस्जिद के अंदर है? यहूदी की बेटी से हज़रत अबू हुरैरा ने कहा था, बेटी ये बता क्या काम है, तुझे क्या जरूरत पड़ गई है? अबू हुरैरा मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं गुफ्तगू करूं, ये बताओ कि नबी मौजूद है कि नहीं है? अल्लाह के नबी के सहाबी ने कहा, हाँ हाँ नबी का शान नबुव्वत में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, वो लड़की आगे आगे चली, मैं उसके पीछे पीछे गया, मैं ये देख रहा था ये बच्ची क्या करेगी। मैंने ये देखा, हुजरे आयशा के करीब गई जहाँ पर अल्लाह के नबी की नालैने पाक रखी थी, जूतिये मुबारक रखी है। वो लड़की बैठ गई और बैठने के बाद उसने जूतिये मुबारक को उठाया, पहले बोसा दिया और बोसा देने के बाद उसने अपने सर से आंचल नीचे बिछाया, बिछाने के बाद घाव को झाड़ने लगी, नालैने पाक को झाड़ रही है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं ये देख रहा कि बच्ची क्या कर रही है। उसने अपने आंचल में नालैन को झाड़ा और झाड़ने के बाद आंचल को संभाला, सीने से लगाया और निकलने लगी मस्जिद नबवी के बाहर। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया, देखे आखिर ये क्या करने वाली है, इसका तरीका क्या है, ये क्या करेगी। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने देखा यहूदी की बच्ची यहूदी की बिल्डिंग में दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद उसने कहा, अब्बा हुजूर मैं आपकी दवाई ले आई हूँ, अब्बा हुजूर मैं आपके मर्ज की दवाई लेकर आई हूँ। अल्लाह अकबर। बाप बैठ गया, कहा बेटी ला। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं एक सुराख से देख रहा हूँ अंदर का मंजर क्या है। एक नाबीना बाप बैठा है, एक बच्ची अपनी बैठी हुई है बाप के सामने, मजबूर बाप ने अपने हाथों को फैला दिया। वो ये सोच रहा था मेरी बेटी कोई टेबलेट लाई होगी, मेरी बेटी कोई इंजेक्शन लाई होगी, मेरी बेटी कोई बॉटल लाई होगी। ये सोच कर उसने हाथों को फैलाया, कहा बेटी ला, कौन सी दवाई लाई
आई है। वो कहने लगी अब्बा हुजूर, ये कोई टेबलेट नहीं है, ये कोई इंजेक्शन नहीं है, ये और कोई दवाई नहीं है, ये ऐसी दवाई है कि जिसका कोई नाम नहीं है, और ये ऐसी दवाई है कि जिसके अंदर हर मर्ज का इलाज हो जाया करता है। आप उठकर बैठ जाएं। अल्लाह के नबी की चहेती, अल्लाह के नबी की चाहने वाली वो यहूदी बेटी अपने बाप को बिठाती है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं सुराग से देखता रहा, आखिर ये क्या करेगी, आखिर इसका तरीका क्या है। कहने लगे, मैंने ये देखा, उसने अपने बाप को बिठाया, बिठाने के बाद उसने अपने आंचल को लिया, और लेने के बाद जो नबी के नालैन की जूतियों की मिट्टी लाई थी अपने बाप की आंखों में रगड़ने लगी, अपने बाप की आंखों पर फेरने लगी। अल्लाह अकबर, 1 से 2 मिनट तक वो अपने बाप की आंखों पर फेरती रही। फेरते 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 थोड़ी देर के बाद कहती है, अब्बा हुजूर आंखों को खोल दीजिए। बाप ने आंखों को खोला, कहा कैसा लग रहा है। अल्लाह अकबर, बाप के आंखों में आंसुओं का दरिया बह रहा है, सैलाब बह रहा है। कहता है, बेटी सुन, जिस मर्द से मैं दो चार था, अल्लाह ने मेरी बीनाई को वापस कर दिया है, अल्लाह ने मेरी बीनाई को वापस कर दिया है। मेरी हवेली मेरे सामने दिख रही है, मेरी बेटी मेरे सामने दिख रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मर्दों की दवाई ढूंढने वालों, आज तुम जा रहे हो दुनिया के कोने कोने में, क्यों नहीं चले जाते बाबा कंबल पोष के कंबल में, और क्यों नहीं ले लेते हो वहां से अपने मर्द का इलाज, क्यों नहीं चले जाते हो किसी अल्लाह वाले की बारगाह में। जाओ और जाने के बाद वहां की मिट्टी को उठा लो। मेरा ये दावा है, न कोरोना रहेगा, न कोरोना को जन्म देने वाली कोई बीमारी रहेगी, मगर अकीदा तो मजबूत होना चाहिए। नबी का तबर्रुक ले लो, नबी का सदका ले लो। मैं कभी ये नहीं कहता कि तुम डॉक्टरों के पास मत जाओ, मगर पहले तुम ईमान वालों के पास जाओ, दिल को साफ कर लो, ईमान को मुनव्वर कर लो। इंशाअल्लाह ये सारी बीमारियां तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहेगी। अब आइए, मैं खुद नहीं कहता हूँ, बल्कि दाई हलीमा खुद कहती है। सुना है दाई हलीमा का नाम, और कौन नहीं जानता है। वो माँ जिसने नबी को दूध पिलाया है, वो दाई जिसने अल्लाह के नबी को दूध पिलाया है। हज़रत हलीमा का खुद का बयान है कि जब मैं अल्लाह के नबी को लेकर अपने घर पे गई, मेरा कबीला बड़ा गरीब था, मेरे कबीले के अंदर कोई भी ऐसा न था जो पेट भर के खाना खाता हो, प्यासे रहते थे, भूखे रहते थे। अल्लाह के नबी की बारगाह में जब आई, अल्लाह के नबी को लेकर गई, अल्लाह के नबी मेरी गोद में थे, और जैसे मेरे कबीले को पहुंचे, सवेरे जब सूरज निकला तो मुझे ऐसा लगा कि सूरज भी हलीमा को सलाम कर रहा है, चांद भी हलीमा को सलाम कर रहा है, दरिया की लहरें हलीमा को सलाम कर रही हैं। सारे कबीले के लोग आए, और आने के बाद कहने लगे, हलीमा तुम्हारे घर में जो बच्चा है उसको सुबह बाहर लाया करो। कहा हलीमा ने, क्यों? कहा इसलिए कि जब इस बच्चे का चेहरा देख के जाते हैं, सारे बिगड़े हुए काम बन जाया करते हैं। हज़रत हलीमा कहती हैं, हलीमा का